ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ کیا حال ہے حضرت؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، بخیر ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے صاحب، فرماؤ۔ ارے حضرت آپ کہاں آج کل بہت زیادہ بزی رہ رہے ہیں آپ؟ ہاں تھوڑا بہت بھی پروگرام زیادہ آ رہا ہے کبھی کا؟ ہے، پروگرام زیادہ آ رہا ہے کیا؟ وہ تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ابھی مصروف ہو جاتا ہے۔ اور آپ پروگرام ہی نہیں ہے؟ نہیں تو پروگرام تو نہیں ہے۔ ہم تو یہ پروگرام ریگولر لائک 10-15 ایک ہی اور ڈیل کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ کچھ بھیجا تھا، آپ نے پڑھا ہے؟ پڑھوں گا، دیکھ لوں گا میں انشاءاللہ۔ ارے یار انشاءاللہ کیا ہے، 3-4 دن میں بھیج دیا، آپ اب تک پڑھے نہیں۔ اچھا، وہ شیطان کے تعلق سے؟ شیطان؟ ہاں شیطان کے تعلق سے میں نے بھیجا، اور میں نے وہ طاہر پادری کے بارے میں ہی بھیجا آپ کو۔ کمزور روایتیں ہیں جی؟ شیطان جو قول میں لکھا ہے نا، اس میں کمزور روایتیں ہیں۔ اس کو آپ کو کیسے صحیح پا کبھی میں آپ کیسے فرق کرنے لگے؟ چاروں اماموں کا عقیدہ نہیں، آپ تو پہلے خود کہہ رہے تھے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ یہی والی بات ہو جائے گی، مجھے پتا نہیں تھا تب نے آپ کو بھیجا، میں تفتیش کر کے بھیجا آپ کو نا۔ چاروں اماموں کا عقیدہ نہیں ہے قبر میں شیطان آتا ہے۔ چاروں امام کا نہیں، آپ نے چاروں امام کیا کہتے ہیں موقع پڑھ لیا آپ نے۔ آپ تو خود کہہ رہے تھے، مجھے نہیں معلوم۔ ارے سر میں کیا، ارے حضرت آپ تو عجیب غریب معاملہ ہے، مجھے دیکھیے آپ دو بات بولیں گے تو مجھے پتا نہیں رہے گا، تو بھائی بولوں گا ٹھیک مجھے پتا نہیں، میں آپ کو تفتیش کر کے بتاؤں گا، میں تفتیش کر کے آپ کو بھیج دیا۔ اللہ کرم فرمایا۔ اور جو آپ کے نظر میں آپ لوگ جس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں نا، ہاں، اصل میں وہ شیخ الاسلام ہے نہیں۔ وقت قیامت قریب ہے، جی جی، اپن کو اتفاق سے رہنا چاہیے سب لوگ۔ دیکھیے ہم سب کو مانیں گے، لیکن اب شیخ الشیطان کو نہیں میں نہیں مانوں گا، کیونکہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ جامع اظہر والے تو مانتے ہیں، ان کو جامع دیکھیے حضرت آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو نبی کا عاشق ہوگا، اب ایسے تو محدث کبیر حضرت ضیاء المستویٰ مالدہ شریف نہیں جاتے 25 سال سے، تو کیا کہو گے؟ جی کہ مالدہ شریف میں ان کا جانا نہ بند ہے نا، امین میاں صاحب سے ناراضگی ہے بہت سخت۔ دیکھیے ناراضگی ہوگی وہ الگ بات ہے، 25 سال سے نہیں جا رہا تھا وہ، 1-2 سال نہیں، دیکھیے 25 سال۔ حضرت نہیں جاتے وہ الگ بات ہے، ان پہ تو کچھ کیا بات ہے ایسی کہ جو جانا آنا بند ہے، 25 سال سے ناراض؟ بڑے آدمی ہے، مسئلہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عقائد میں اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ میں اختلاف ہونا الگ ہے، اور عقائد میں اختلاف ہونا یہ زمین آسمان کی بات ہے۔ اتنا اختلاف ہو جائے کہ دعا سلامی نہ ہو 25 سال سے؟ اب پتا نہیں مجھے، ان کے بارے میں بڑے لوگ ہیں، ان کے بارے میں نہیں پتا۔ اب میں خود جامع حبیبیہ الہ آباد میں جب وہ سیمینار ہوا تھا نا، چلتی ٹرین میں نماز ہوئی تھی، دیکھیے حضرت تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ علی میاں صاحب مالدہ شریف نہیں جاتے، یہ بات آ رہی ہے لوگوں کے اندر۔ آپ دیکھیے آپ کو نہیں پتا، افضل صاحب کھڑے ہو کر کہا تھا مولانا افضل صاحب نے کہ ناظر ارشد صاحب آپ نے بات اٹھائیے، تو اب آپ یہ ذمہ داری لو کہ مالدہ شریف میں بدایوں کے عالم نہیں آئیں گے، یعنی علامہ سید الحق صاحب نہیں آئیں گے، اور بدائی والے نہیں آئیں گے، تو ہم اپنے والد کو لے کر مالدہ شریف جائیں گے، یہ بولا تھا افضل صاحب نے۔ ہاں تو بالکل، اگر کوئی اسٹیج ایسا ہے جہاں پہ آلتو فالتو آدمی بھی جاتے ہیں تو ہم نہیں جائیں گے۔ اب بتاؤ بدائی والے کیا فالتو ہو گئے؟ جن کی شان میں فاضل بریلوی نے 105 شعر کہے تھے، ٹھیک میں یار، ارے تو بات دیکھیے، جن کے شان میں کہے تھے تو کیا وہی بات ہوگی نا کہ آل رسول مہرروی رحمۃ اللہ علیہ کتنے اچھے تھے، بہت اچھے تھے، ابھی ان کے خانقاہ کے کچھ اچھے ہیں، جن کو آپ وقار اہل سنت کہتے ہیں، ان کی نظریہ صحیح نہیں ہے۔ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے فرق، تھوڑا نہیں، صحابہ کے بارے میں کسی کو ایک ورڈ بھی کمپیئر نہیں کریں۔ سے توبہ کروا لی یہاں پہ میں۔ ارے حضرت وہ توبہ نہیں کیے، ان کی میں ایک تقریر سنا ہوں جو کھلے عام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے گستاخیاں کرتے ہوں، ان کی توبہ کروا لی، جھانسی میں تو توبہ کروا لی۔ دیکھیں وہ نہیں، وہ خود اس میں خود ملوث، وہ اپنی زبان سے اقرار کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے گستاخی کرتے ہیں۔ پہلے نے وہ توبہ کیے ہیں؟ تو ایسے تو خطیب انقلاب حضرت مولانا عبداللہ خان آدمی نے بھی رجوع کیا۔ وہ خطیب انقلاب ہے؟ ارے بھائی بہت بڑے دنیا کے مشہور مقرر ہیں۔ دیکھیے حضرت آپ کے کہنے مطلب یہی ہے، مطلب کہ آپ نے حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ میں اس سے انکار نہیں کیا کہ حضرت حافظ ملت کے شاگرد ہو، وہ الگ بات ہے، ان سے بھی کیا کہتے ہیں یہ ہو سکتی ہے، کیا کہتے ہیں وہ بھی گستاخ بن سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، گستاخ بن سکتے ہیں، وہ کئی بار توبہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کی بات قابل معتبر نہیں، وہ خطیب انقلاب ہو یا خطیب کیا ہو،
अच्छा, अलग जैसे बात है। वक़ार मिल्लत ने अगर ये कहा हाँ, कि मुझे हजरत अली के जुब्बे मुबारक पर नाज नहीं, मुझे तो अपने पीर पर नाज है, तो फिर क्या वक़ार मिल्लत मुजरिम हो जाएंगे इस कहने पर? देखिए आप, मैं समझ गया आप कहाँ ले जा रहे हैं। एक मरतबा क्या हुआ कि अभी मतलब फौरन मैंने उनसे ये बात कहा, यूट्यूब से ही नंबर, जैसे आपका भी यूट्यूब से नंबर निकाला हूँ, उनका भी यूट्यूब से निकाला। किनका? उसका नाम अब एक अपने आप को अहले बैत का आशिक कहते हैं, सिर्फ अहले बैत, तो उनका और किसी से ताल्लुक नहीं है, कुरान और अहले बैत है उनका। अब्दुल रशीद बाबा नाम करके है, उनको बाबा जान कहते कोई आदमी। असल में वो पूरा पक्का राफ़ी है, आप जानते हैं उनको? हाँ, तब क्या करें साहब। हाँ, तो बात सुनिए। कोई कह दे कि मुझे मौला जुब्बाए मौलाए कायनात पे इतना नाज नहीं है, हैं? जितना बरेली के इमाम अहमद रजा पे नाज है, तो क्या वो काफिर हो जाएंगे? लेकिन हजरत अली की शान में गुस्ताखी है एक तरह की। गुस्ताखी होना, देखिए हजरत अली की शान में गुस्ताखी हो जाएगी तो क्या काफिर होगा? नहीं, ये बताओ कि जब इतना बड़ा जिसके पास हजरत अली का जुब्बा हो वो फिर नाज न करे तो इसका क्या मतलब है? नाज करना और, लेकिन उस पर कुफ्र का फतवा लगाना बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? कुफ्र क्यों बोले? नहीं, ये बताओ कि आपके पास ख्वाजा गरीनाथ की टोपी हो तो आप उस पर नाज करोगे कि मेरे पास है ख्वाजा गरीनाथ की टोपी? ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि मुझे ये बरेली नहीं के कहोगे इमाम कि अहमद मुझे रजा। गरीनाथ की टोपी पर नाज नहीं है, मुझे तो जाउल मुस्तफा साहब पर नाज है, ऐसा थोड़ी ठीक है, कर सकते हो। अब मैं कह दिया तो क्या मुझ पर कुफ्र आयद होगा? नहीं, ऐसा कहना कितनी गलत बात है। देखिए हजरत गलत, देखिए एक है मकरू, नाजायज, नहीं, फिर ये हराम, बता फिर शिर्क। अवाम का क्या होगा जब देखिए आप अवाम, पीर देखिए होके ऐसी बातें करोगे? मैं समझ गया कि हजरत गलत बोले, लेकिन आप कौन होते हैं? आप तो पूरा मतलब कि जो आदमी वो था पक्का राफी किस्म का आदमी है, नहीं, पक्का वो तो राफी है। ठीक है जो भी हो, लेकिन जिसने बोला मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं, क्या ऐसा ही बोला उसने? गलत, मैं इसको भी गलत मानता हूँ कि अगर आप बोले भी, आप किस नजरिया से बोले वो अलग बात है, लेकिन अवाम में ये गलत मैसेज जाता है, इस बात हाँ, को मैं भी मानता ये हूँ। आपने हक लेकिन बात कही, आपने बहुत अच्छी बात मेरी बात सुनिए हजरत, जो बात देखिए, अगर बड़े भी बोलते हैं बड़े से गलती हो जाती है, लेकिन अगर ये बात बोले तो आवाम पे गलत असर तो पड़ेगा, लेकिन किसी को हक नहीं है कि अगर ये वर्ड बोलते तो उन पर कुफर को बोले, वो हाँ, हराम कुफर खोर। का फतवा लगा नहीं कह रहा मैं, लेकिन कह रहा हूँ कि वो अवाम के अंदर इंतशार पैदा होता है। देखिए ये तो है, सही बात है, यही आपने मानता हूँ। बहुत अच्छी बात की, आप रोशन ज़मीर और वली बन जाओगे इंशाल्लाह। अरे यार वही वाली बात हो कि मैं रोशन जमीन नहीं हूँ। नहीं, वो आपने बहुत अच्छी बात की कि अवाम में गलत मैसेज जाता है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ रोशन जमीर मैं नहीं हूँ, और वो रोशन जमीन सिर्फ गौसे आजम है। आप तो मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा साहब की खिदमत करें और फैज़ हासिल करें। अब मैं फैज अभी हासिल कर रहा बरेलवी हूँ। जमात में सबसे बड़े मुहद्दिस वही हैं, उनके बाद अब कोई नहीं है अभी। हाँ मतलब वो बुझ इस को बात अहले को तो सुन्नत, मानना पड़ेगा कि हदीस में बिल्कुल उनका कोई सानी नहीं है अभी। अरे हम किस्मत से क्या अहले सुन्नत में, मैं इल्म हदीस में उनका कोई सानी नहीं है। इल्म हदीसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे अहले सुन्नत के कायद में इतने बड़े कायद कोई नहीं है। अब देखो वो इख्तिलाफात तो है हजरत अमीन मियां साहब से, देखिए वो तो रहेंगे क़यामत तक इख्तिलाफात के चलते हजरत इख्तिलाफ होना और है, लेकिन पादरी की बात कर रहे हैं, वो शेखुल इस्लाम नहीं, वो अब शेखुल देखो शैतान है। मदनी मियां साहब से भी इख्तिलाफात हैं, वही देखिए हजरत मदनी ताहिर मियां से काजी की बात नहीं। देखिए हाशिम मियां हजरत, साहब से भी इख्तिलाफात है, मुहद्दिस कबीर के बहुत से तो उलमा से। बात सुनिए, उन्होंने क्या बोले हुजूर मुस्तफा के शान में, क्या बोले बताइए आप? कौन? हाशमी मियां। वो पहले बोले थे, वो क्या बार बार उखाड़ना अच्छा नहीं रहता, वो मुफ्ती आजम के बारे में बोले थे। क्यों हाँ बिल्कुल बोले थे। अब बताइए, अब हम सब ये गौसे आजम के लिए गलत बोले सैयद तो होना गलत, जरूरी है? वो क्या कह रहे, जोश में ज्यादा बोल गए थे वो, बहुत ज्यादा। वही बोले, जोश में होश नहीं खुलना चाहिए, उसको तौबा करना चाहिए। तौबा करना चाहिए कि मेरे मुंह से बहुत गलत जुमला निकला मुफ्ती आजम की शान के खिलाफ, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल मैंने बोल दिया कि बाप की शक्ल तो बेटे में आती है, वो सैयद पठान है, सैयद, हाँ बहुत गलत तशबीह दे दी थी उन्होंने। तो अब वही बताइए कि अब अगर ऐसी बात है तो और सुनो, आजम मैं एक बात आज आपको बता देता हूँ, यही बात जो आपने याद दिलाई ना, मैं लखनऊ में हजरत हाशिम मियां साहब के घर तक पहुंच गया था, जैन का घर है ना वीआईपी जगह में, लेकिन मैं इसी वजह से लौट आया, यही ख्याल आ गया कि यार इन्होंने मुफ्ती आजम शान में ऐसी बातें कही हैं, क्या तारीख लेने के साथ से मैं गया था बात करने के साथ से, तो यही वजह से पलट गया कि यार अब मिलना सही नहीं है। वो एक चपरासी तो मिल गया था उनका, लेकिन मैं फिर वो सोच कैंसिल कर दिया मैंने, इरादा ऐसी मुझे ख्याल आ गया यार भगाओ, यही वाली बात, क्या मुफ्ती आजम के बारे में ऐसा कहने की क्या जरूरत थी। तो बिल्कुल आप बताइए, तो उनसे कैसे मिलेंगे अल्लाह साहब, आप ही बताइए। अल्लामा साहब अब के बताओ पीर इस साहब कहने है, से कितना इंतशार हुआ उनके इस कहने से, बिल्कुल और बताइए इनकी आप। इज्जत नहीं फर्क पड़ा कि लोग कहते हैं कि यार कहेंगे कि यार बताओ ऐसा कहने की, और आज तक तोबा नहीं किया। तो बताइए आप, वही बताइए आप कैसे उनसे मिलेंगे, आप बताइए। हाँ, ये कह देना चाहिए कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है,
छोटी गलती ना माने, बहुत बड़ी, और मैं आइंदा ऐसी गलती से इज्तनाब करूंगा। क्या ख्याल है? देखिए मैं बताऊं मगर ना, ये भी तो है, लोगों ने हजरत हाशिम मियां साहब के खिलाफ भी तो कितनी गलत सलत बातें लिखी हैं किताबों में। वो देखिए बहुत सारी गलतियां की है। 14वीं सदी का फ्रॉड मैं खुद बरेली से लाया हूँ, उससे आला हजरत से मैं खुद लाया था। देखिए वो गलती की है, इस बात को मैं मानता हूँ, बहुत गलती की 14वीं है। सदी के फ्रॉड में क्या क्या लिखा मालूम है? आप पढ़ नहीं पाओगे इतनी बात, पढ़ तो लोगे लेकिन वही बातें तो उनके घर कौन कर लिखे कौन है? देखिए मैं देखिए इस दौर में ना, इस दौर में और हर अगरी मियां के घर से भी मैं किताब लेके आया हूँ उस जमाने में। अरे बात हजरत मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कैसे दिया किताब? आप मेरी बात सुन लीजिए ना एक मर्तबा। वो कोई भी पीर साहब हो, मतलब मैं समझ रहा हूँ कोई भी हो, अल्लामा साहब हो, कोई भी हो, वो बात शाही हो जाती है जो हमारे बड़े को पता नहीं होती। जो चमचे होते बीच में ना, हाँ, वो ऐसी ऐसी बात कह देते हैं जिसकी वजह से हमारे बड़े बदनाम होते हैं। तो उनके नसब पे भी तो हमला किया गया है ना, कि राब जी जाने क्या क्या बनाया गया है। अब मैं बताऊं ना हजरत, मैं बताऊं ना, साहब ने लिखा कि 32 बातें ऐसी लिखी हैं हमारे खिलाफ कि मेरा कलेजा वो होता है, मगर मजबूर लिखा हूँ। 30-32 बना के लिस्ट बनाई है उन्होंने। वो लफ्ज कमली एक तहकीक है ना उनकी किताब, उसमें लिखा। बात सुनिए, तो कौन लिखे है? लिखने वाले कौन है? नहीं, उन्होंने लिखा कि हमारे बारे में लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी है, रफजी लोगों ने। अरे ठीक है, रसवी लोग तो कोई मोतबर आदमी होगा ना। अब देखो, कलीम हनफी ने भी ये कहा था कि तुम्हें शेखुल इस्लाम किसने बना दिया, मुजद्दिद या शेखुल इस्लाम? कहा कि तुम ये कहा कि तुम मुताला करो, ये कहा तुम मुताला करो, भी मुताला करो। जब उन्होंने कहा ना कि देवबंद वालों का ज़बीहा, अगर जब तक किसी का कुफ्र कन्फर्म ना हो तो देवबंद वालों का कोई भी ज़बीहा खा सकते हैं। कैसे मुझे बताइए, कैसे खा सकते हैं आप? तो इस पर मुफ्ती कलीम हनफी ने क्या कहा था कि आप किसने शेखुल इस्लाम बना दिया, जाने क्या क्या लफ्ज बोले थे उसने। देखिए हजरत, आप ये बात को मानते हैं? देखिए मानते हैं, मुतलकन बोला जाएगा मन तशब्बा बिकौमी, तो उनकी ज़बिया कैसे जान? क्या बताइए आप कि अगर आप मक्का शरीफ जाएंगे, मदीने शरीफ जाएंगे, तो क्या आप वहाँ का ज़बिया नहीं खाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और जो हाजी खाते हैं मैं, अरे हजरत बात है, हमारे उस्ताद जाते हैं खुद अलग नमाज पढ़ते हैं। कौन जाते हैं? हमारे यहाँ के जामिया मस्जिद के उस्ताद जाते हैं, वो अलग नमाज पढ़ते हैं। जुमा कहाँ पढ़ते हैं? जुम्मा नहीं पढ़ते, अलग पढ़ते हैं। नहीं, जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते? बिल्कुल। तो बताइए, कोई जरूरी है? बताइए। अगर वहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसेपुई डाल दिया। तो ठीक है, बताइए आप। असल आप में बता दिया मैं, 40 दिन मेरी बात हजरत, मेरी बात हजरत, 40 दिन में 6 जुमे आएंगे। तो मेरी बात सुनो ना हजरत। तो क्या मैं नजदीक पीछे नमाज पढ़ूंगा? आप भी अंसारी हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह अंसारी हूँ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अंसारी हूँ। तो हमारे पीर साहब भी अंसारी दोनों, आप भी अंसारी, हम भी अंसारी। हमारे पीर साहब भी अंसारी है। कभी ये बताओ, इन्होंने हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का जलसा किया बरेली में आज तक, ये पूरे हिंदुस्तान में? देखो तो अब अंसारियों की कितनी खिदमत है। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल की मेहमान नवाजी फरमाई। हजरत आपने तो मंसूब कर लिया, बताइए अपना। नहीं, ये बताइए, आप ये बताओ, कभी बरेली में हजरत अय्यूब अंसारी का जिक्र होता है उर्स हालत में? कभी नहीं करते। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कभी करें तो करे, वरना नहीं करते आमतौर पर। अरे मेरी बात तो सुन लो यार, असीम मामला वही वाली बात हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि आपने तो मंसूब कर लिया, आपके पास सनद क्या है कि आप वहाँ से क्या कहते हैं, अंसारियों का सनद वहाँ से मिलता है? तो आपको वही वाली बात हो जाएगी। नहीं, आपके पास तो सनद है ना? आपके पास सनद नहीं है भाई? मुझे सनद याद नहीं, मेरे पास सनद नहीं। आपने डेक बोल दिया तो अंसारी तो आप भी कहलाते हैं ना? देखो मेरे दादा बाबा कहते आ रहे हैं, तो हम भी अंसारी हैं। क्या हुआ? तो बताइए, तो फिर आप यहाँ पर थे, जैसे आप यहाँ पर थे, सनद हो या ना हो, सनद होना जरूरी है कि हम अंसारी कहलाने के लिए सनद की जरूरत पड़ेगा? आज कितने बेसनद सैयद बने हुए अमीनुल काजी मालेगांव वाले जैसे। देखिए मुहद्दिस कबीर का फतवा है अमीनुल काजी पर। मेरी बात सुनिए, फतवा दिया हजरत ने। मेरी बात सुनिए। आप वो बोले हैं, मैं इस बात पर ना, लेकिन हुजूर आला हज़रत ने ये भी फरमाया कि जो सैयद बोल दो उनको बगैर सैयद अब नहीं कह सकते। सैयद पे कहाँ फतवा लगा? मुहद्दिस कबीर ने क्यों फतवा दिया? सैयद पे नहीं, सैयद पे मुझे सैयद के बारे में नहीं पता। सैयद पे मुझे लगे कि बहुत आदमी एतराज करते हैं, वो अलग बात है। वो तो है ही नहीं, वो तो सैयद तो है नहीं, वो काजी है, जो भी है अल्लाह आलम। तो ठीक है, सैयद आप आलिम भी नहीं है, ना कारी है, ना हाफिज है, कुछ नहीं है। उसे एक पारा भी याद नहीं है, एक पारा भी कुरान का कुछ नहीं। वो उनको इजाजत भी नहीं तहकीक करने के, तबलीग करने की इजाजत है, तहकीक करने की इजाजत नहीं। ये भी, वो तो गुलाम जिलानी अजहरी ने बोली थी बात को। उसने ये भी कहा था कि चांद आकर गौसे पाक से पूछा कि मैं 29 को निकलूं कि 30 तारीख को निकलूं। कुफ्र बका था उसने डायरेक्ट। देखो पहले आप एक कुफ्र थोड़ी बका, उसने तो बहुत सारे कुफ्र बके हैं।
देखिए तो वही तो गौरव कि आप जाहिल हो तो बकबे करेगा, इसलिए हमारे अच्छा, मुरादाबादी ने फरिश्ते को लंगड़ा बता दिया कि एक फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, तो बताइए उनका। मैं देखो मेरी बात सुनिए, हम्माद अदा ने ये कहा तमाम सैयद कयामत में आला हजरत को ढूंढेंगे, ये बातें बोलने की नहीं क्या था? मतलब कि देखिए ये लोग अरे हम जाहिल ये किस्म नहीं का, कहते हालात को मत मानो, ये क्या तरीका है कि हर कुछ बोल दो कि साहब सैयद ये तमाम ज्यादा गुलूब हो गया। गलत है ऐसे ना नहीं साहब? बिल्कुल ये बहुत ज्यादा गलत है। हाँ, ये ऐसी बातें बोलने से पब्लिक में इंतशार होता है कि यार ये क्या तरीका है यार इन लोगों का। देखिए कुछ ऐसे आदमी है ना, मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे आदमी है जिनके ऊपर रोक लगा है, आसिफ सैफी, अमीनुल कादरी, हाँ, ये हम्माद मुरादाबादी, इन सब इनको तकलीफ सुनने से मना किया गया। अब जो इनको बुलाएंगे वो भी मरदूद होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। अब इन तीनों को चाहिए कलमा पढ़े, निकाह करें, दोबारा से ईमान लाए, बरेली में अफजल रजा साहब के हाथ पर ईमान लाए या मुहद्दिस कबीर के हाथ पर ईमान लाए। सबसे अच्छा है कि मुहद्दिस कबीर के पास जाए, कहेंगे हजरत हमें मुसलमान कर लें अब, और हमें सर्टिफिकेट। कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं भी अगर आपसे ये कोई भी बस ऐलान होनी चाहिए, जो इंतशार वो फैलाए। मुहद्दिस कबीर बहुत काबिल शख्सियतें जमाने की, मैं वो बात को मैं ही नहीं मानू, पूरी जमाना मैंने कई बार हजरत से बात किया है तो हजरत बड़े तसल्ली से बात करते हैं, हजरत की आदत उम्र में भी बात करते हैं, देखो ये उनकी शराफत नहीं। देखिए बात सुनिए, क्योंकि हालांकि कुछ मर्दूद लोग रहते हैं जो मैं बात करता हूँ तो कुत्ते की तरह से कमेंट करते हैं, सुअर की तरह से, मैं उनको सुअर मानता हूँ जो कमेंट बुरे करते हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ, भाई आलिम से हम पूछ सकते हैं तो उसमें कौन सी बुरी बात है? तो आप एक बात सुनिए, तो एक बार मैंने हजरत से बात की हाजिर नाजिर के मसले में, तो मेरे बारे में बड़े बड़े बुरे कमेंट लिखे कुत्तों ने, कुत्ते किस्म के लोगों ने। क्या आपने सवाल किया? तो अगर मैंने कहा कि हजरत ये जो लोग कहते हैं कि बहुत से लोग आम तरीके से कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल हर जगह हर वक्त हाजिर और नाजिर है, तो मैंने हजरत से पूछा तो हजरत ने बताया था कि एक बार अब्दुल अजीज साहब जो बरेली के शाहनामा पढ़ते थे, शहादत नामा या शाहनामा, मशहूर थे, अब्दुल अजीज साहब नाम से, क्या नाम था ध्यान नहीं आ रहा, तो कहा कि मुबारकपुर में आकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में तशरीफ लाएंगे। तो कहा सदरुल शरिया ने हमारे वाले ने टोक दिया था कि ये आपने ये रिवायत कहाँ पढ़ी कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाएंगे, किस रिवायत में आपने कहा पढ़ा? बिल्कुल गलत है ना, ये गलत है। इस तरह से कहना कि मैंने तशरीफ लाएंगे आज तक में देखिए बात, मैं दलील किसी में मानता हूँ, मैं इस दौर की बात कर रहा हूँ। हुजूर मुहद्दिस कबीर अपनी जगह अलग है, जैसे कि हर आदमी का एक होता है ना, क्या कहते हैं, एक मर्तबा एक होता है। जैसे हुजूर मुहद्दिस कबीर साहब ये हदीस में मुहद्दिस माने जाते हैं कि नहीं मानते? ठीक है, कबीर हैं, ठीक है, बड़े मुहद्दिस हुए, कबीर हुए, बहुत बड़े मुहद्दिस हुए, ठीक है। जलाली साहब हो गए, वो मुफक्किर हो गए, ठीक है। बाबा खादिम हुसैन नदवी साहब बहुत बड़े आशिक रसूल थे, उन्होंने तो ऐसी कभी बात ही नहीं बोली है कि हुजूर उनको आप क्या मानते हैं बताइए? तो कैसी बात नहीं बोली उन्होंने? ये मतलब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में आए थे, मैं इस दौर के मैं ये मतलब उनसे इश्क है, ऐसी बात कहाँ बोली कि अल्लाह के रसूल महफिल में तशरीफ फरमा? वही मैं बता रहा हूँ कि वो तो ये कभी ऐसी बात बोल बेन कि वो उनका तो बताऊं ने रियली बात उनका तो क्या ये टटपुंजी जो मुकर्रिर है ना, ये ऐसी बातें करते हैं, अमीनुल कादी जैसे और ये हम्माद रजा। अरे इन लोग की बात सुनिए, इन लोग की बात छोड़ी, इन लोग की बात। हम्माद रजा ने जो फतवा दिया क्या उस पर अमल किया जाएगा था? क्या मतलब? जैसे हजर अस्वद को न चूमे, हम्माद रजा ने कहा, मतलब देवबंदी मुंह लगाते ना हजर अस्वद से, तो इसने कहा जिससे देवबंदी मुंह लगाए जिस बर्तन से, तो उससे उसको फेंक दो। तो फिर हजर अस्वद को क्या करो, न चूमे हम्माद रजा की वजह से, चूमना पड़ेगा ना हजर अस्वद को। हम्माद रजा पर कुफर का फतवा लगेगा इस वजह से। मेरी बात सुने तो हजर अस्वद को चूमने को अगर ये मना करेगा तो इस पर कुफर का फतवा लग जाएगा। बात सुनिए ना हजरत देखिए, हजर अस्वद जो है उसका मर्तबा बड़ा है या एक वली का, आप वो बताइए। देखो साहब, इस बारे में अपन कंफर्म नहीं कर सकते अभी। वही तो बताए ना, जो बात आपको पता है वो मुझे नहीं, जो मुझे पता है वो आपको नहीं। बात सुन लीजिए, हजर अस्वद एक पत्थर है, सिर्फ एक पत्थर का निस्बत है। देखिए आम तरीके का नहीं, जन्नत का पत्थर है। ठीक है, मैं बोलो कहाँ तो अल्लाह का वली क्या है? अल्लाह का दोस्त होता है वो। और जो उससे दुश्मनी करता है अल्लाह उससे मालूम ऐलान जंग करता है उससे। मेरे वली से दुश्मनी की, उससे मेरा ऐलान जंग। तो बस सुन के आप बता, ऐलान जंग में है एक जन्नत का पत्थर होना और है, तो अल्लाह के वली का मर्तबा ज्यादा है बनिस्बत काबा, क्या कहते हैं, हाजिर अस्वद के। एक पत्थर हुआ, तो पत्थर का मतलब कि वो ठीक है, हम समझ पाए एक निस्बत हुआ। जैसे कि पूरी दुनिया में अगर कहीं का
जगह मोतबर है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क्या कहते हैं रोजा शरीफ है, वो पूरी दुनिया का सबसे मोतबर जगह है, सबसे पाकीज़ा जगह है। बिल्कुल, कोई बताए ना कि निस्बत है, तो उनकी भी निस्बत है, लेकिन एक अल्लाह के वली से ज्यादा उनका मर्तबा नहीं है, उसका मर्तबा नहीं है। अच्छा, हजरत मुहद्दिस कबीर ने जब पीर अब्बू मियां साहब पर फतवा लगाया था सैयद सना वाले, तो उससे पहले कई बार तो ये होया है, मुफ्ती बद्र आलम निजामुद्दीन साहब, मुफ्ती मुतीउर्रहमान साहब हो गए। तो ठीक है, तो इसलिए अच्छा, आपको एक बार कोई अगर सुलह कुल्ली आदमी बुला ले जलसे में, तो आप एक बार में पता लगा लेंगे कि नहीं सुलह कुल्ली है, देवबंदी है, नजवी है, क्या है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल। और ये एक बार नहीं कई बार गए, वो बहाने बना रहा है कि हमें मालूम नहीं था। अरे तुम कब तक बेवकूफ बनाओगे कौन को? कलमा पढ़ो, दोबारा से निकाह करो सबके सामने। देखिए, असल में जो है अशरफिया के जितने तालिब इल्म है पीछे पड़ जाए कि हजरत आपको निकाह करो, कलमा पढ़ो, नहीं तो हम जा रहे हैं अशरफिया से, देवबंद चले जाएंगे सीधे। मामला क्या है? आप लोग बेवकूफ बना रहे हो, दूसरों को जो कलमा पढ़ाते होगा, कोई देवबंदी की नमाज जनाजा पढ़ ले एक बार, तो आप उसे भी नहीं मालूम था, वो भी कहते हमें नहीं मालूम, क्यों हमसे दोबारा निकाह पढ़वा रहा हो आप? कल को देवबंद कोई भी कह देगा कि हमें क्या मालूम देवबंदी था, क्या करके गया, क्या नहीं क्या करके गया, नजवी था। आप लोग तो अपने को तो बचा रहे हो तुम लोग, मजा के तुमने रुकू सजदे वाली नमाजें पढ़ी हैं। सैयद सरावाब ने तो रुकू सजदे वाली नमाजें पढ़ के, और एक आम आदमी बगैर रुकू वाली नमाज पढ़े जनाजा, तो ये बद्र आलम फतवा लगा देंगे कुफ्र का, ये मुफ्ती निजामुद्दीन भी कुफ्र का फतवा लगा देंगे। देखिए बात सुनिए, मामला सैयद सरावाब कई बार गए, 2 3 बार गए, खा के आए, नमाजें पढ़ के आए, ये कब इनके ऊपर तजदीद ईमान लोग कराएंगे? देखिए बात सुनिए, आप जैसे बात उठाएंगे ना अशरफिया के तालिब इल्मों में, ये बात की खलबली मचा दो, स्ट्राइक, ये कह दो कि साहब देखो अगर आप लोगों ने तौबा नहीं की, कलमा नहीं पढ़ा, तो हम लोग निकल जाएंगे। देखिए बात सुनिए ना हजरत, इसलिए तो मामला है कि हमारे यहाँ के उस्ताद सब अशरफिया के स्टेज पर नहीं जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं जाते। अरे वाह, ये आज राज मालूम हुआ हजरत, आप माशाल्लाह बहुत राज जानते हो हजरत, आप तो एक से एक राज। मतलब कि क्या, देखिए मैं राज नहीं, आप किसी से पूछ लीजिएगा, मतलब क्या हर साल अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ मैं, हुजूर मुहद्दिस कबीर साहब भी जाते हैं। उसमें ही तो वो आते हैं, वो बड़े बड़े आलिम आते हैं ना, हाफिज मिर्जा अबीदुल्ला खान आदमी ने वहीं तो बेइज्जती की थी हजरत मुहद्दिस कबीर। देखिए मैं जो मामला है ना, मैंने मामला अबीदुल्ला का, वो भैंसा किस्म का आदमी है, और भी है वहाँ तो सुलह कुल्लियत आ गई अशरफिया में, मुझे मालूम है। सुलह कुल्ली नहीं, अगर वो तो क्या मामला है, वो कभी हाविया बन जाता है, बदलता रहता है, कभी जहन्नम में कुत्ता बन गया, कभी बदलता रहता है। अरे आल्टू पल्टू वाला आदमी उनका। अरे भाई देखो, अशरफिया वाले तो बिल्कुल मुजब्जब किस्म के हैं। देखिए थोड़ी शोहरत मिल जाती है ना, हजरत का नाम मजबूरन दे रहे हैं अपनी रोटी सेकने के लिए, समझ लो। दावत इस्लामी का लिहाज से आजाद का नाम लेता है, और इसलिए कि इसको रोटियां सेकना है। कैसे बोल दिया आप? अरे इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया। वही वाली, फिर आप आगे फिर वही रास्ते पे आगे। आप बताइए कि वो क्या ये सऊदी के शेख से मिला है, उनका हाथ चूमा है, उनके पीछे नमाज पढ़ा है। हाँ, ये मुहद्दिस से कभी ने कहा था कि पहले इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ते थे। खुद मुहद्दिस से कभी की ऑडियो है, मैं आपको भेजूंगा। वही बात, मेरी बात सुनो, पढ़े थे अभी ऑडियो जिसमें मुहद्दिस से कभी ने कहा है, पागल बनती है। वो पढ़े थे, तौबा किए कि नहीं तौबा किया? नहीं, कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने, निकाह नहीं किया। वो नमाजें दोहराने का ऐलान नहीं किया कि मैं वो नमाजें अब दोहराऊंगा तो कम से कम 1000-2000 नमाजें दोहराना है इनको। कई बार हज किया है ना उन्होंने शायद। तो आप बताइए, तो ठीक है, कई मर्तबा ये किया है। जैसे 40 दिन में 200 नमाजें आती हैं, अगर इन्होंने 5 हज किए तो कम से कम 1000 नमाजें हो गई। 1000 बार इनको कलमा पढ़ना पड़ेगा। जितनी बार नमाजें पढ़ी उतनी बार कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सी बात हो गई भाई? अरे हर नमाज का एक बार कलमा पढ़ना पड़ेगा इनको। वही अब ये मतलब कि कहाँ फतावा रज़ी, आप पढ़ो फतावा रज़ी, आला हज़रत ने क्या लिखा है, बहुत सख्त फतवा दिया आला हज़रत ने, यानी बहुत सख्त आला हज़रत का फतवा। यानी कि जो देवबंदी के पीछे एक वक्त की नमाज पढ़े तो उसको एक तौबा फतावा रज़िया तो निकाल दिए। फतावा रज़िया जिल्द 4 सफ़ा 594 के आसपास पढ़िए आप। यानी निकाह भी उतना मर्तबा करना पड़ेगा? निकाह 1000 बार नहीं, निकाह एक ही बार करना पड़ेगा। कल में 1000 बार पढ़ना पड़ेगा। तो आपने तफ्तीश कर ली कि वो तौबा नहीं की है, कुछ नहीं किया? नहीं किया। नहीं तो सोशल मीडिया में आती ना तौबा, मशहूर होती। देखो आपने पढ़ा होगा जो तौबतुल सिर्र बिस्सिर व तौबतुल एलानियत एलानिया, आपने पढ़ा है? मैं पढ़ा हूँ। मेरी बात सुनिए, सिर्र तौबा है और एलानिया की तौबा एलानिया है। मेरी बात सुनिए ना, एक बात, वो कब का मामला है, कब पढ़ते थे? यहाँ से कितना? कबीर ने कहा जब हम आ गए थे या मिलने तो इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं पहले इमाम हरम के पीछे पढ़ता था, फिर मुफ्ती अब्दुल हलीम ने मना किया तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ये बिहार वाले? हाँ।
मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब, वो सीतामढ़ी का जो जिनका मदरसा है, वो इन्हीं के साथ में थे, जो भी हो बल्ला। मैंने भी बुलाया उनको, शफीपुर में जलसे में बुलाया था मैंने उनको। आदमी तो नेक थे, ठीक थे, वो मैंने बुलाया था जलसे में उनको। बहुत देखिए अभी उनका मदरसा अभी भी है, अदरी बिहार में में बहुत सबसे बड़ा शानदार मदरसा, मदरसा अदरी में है। बिहार में उनका सबसे बड़ा मदरसा अदरी का, लेकिन वहाँ के मेरे गांव के लड़के लोग पढ़ते हैं। मैंने उनको बोलते शफीपुर कुम्हार रूल बुलाया, नहीं 2 दिन के जलसे में बुलाया। सादा आदमी थे, नजराना नहीं मांगते थे वो। मैंने कुल 800 रुपए दिए थे, 800 या 1000 रुपए, इतने दूर से बुलाया था शफीपुर, आज से 15 साल पहले। तो आप इतना डिमांड करते हैं? मैं तो जाता भी नहीं हूँ जलसे में, कम कर दिया मैंने। तो पहले जाता था, अब नहीं जाता। तो पहले जाते थे, कितना डिमांड करते थे? झूठ मत बोलिएगा। नहीं, हमने कभी डिमांड किया तो पूछ लेना कोई से भी। हम तो ये तय करके जाते हैं कि रोटी हराम की ना मिले, मतलब ये कि हलाल वाली जगह खाएंगे। चंदे की नहीं खाते थे हम जलसे में, किसी अलग घर में खाते थे, मालूम कर लेते थे सूद ब्याज वाला तो नहीं है, नमाज पढ़ने वाला हो। मैं बता देता था कि सूद ब्याज वाला ना हो, नमाज पढ़ने वाला हो, वहाँ मेरा खाने का इंतजाम हो। जलसे के चंदे का मैं नहीं खाता, मैं बता देता था, तो मेरे लिए फिर अलग बनता था खाना। देखिए आपने अब बताओ, जब हम चंदे का खाना ही नहीं खाते तो चंदे का पैसे का हम क्या करेंगे? मिलता तो था हमें पैसा नजराने में, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते थे, हम जरूरतमंदों को देते थे। क्योंकि हम हम बम्बई से इतर लाया, मैं बम्बई से इतर लाया, नहीं मैं बम्बई से इतर लाया, अजमेर शरीफ से लाया, दिल्ली से लाया। मैंने इतर का भी धंधा किया है और इंशाल्लाह यही और करूंगा। आपका पैसा हुआ कि नहीं हुआ? वो आपने कुछ किया, वो आपका पैसा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, जैसे जलसे से हमें मिलता था, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। आप इस्तेमाल करिए। अगर कोई हमें मुरीद देता था पर्सनल, या हमें मालूम हो जाए पर्सनल दे रहा है, तो उसे हम इस्तेमाल करते थे, वो भी मालूम हो जाए कि इसका पैसा सही है, हलाल रोजी वाला है। आप किस सिलसिले में मुरीद कर दें? हदिया में भी, मदारिया में भी, दोनों सिलसिले से मैं खिलाफत है अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। और हम ये चाहते हैं कि अहले सुन्नत में जो आपस में टकराव है ये खत्म होना चाहिए। कुछ हद तक तो खत्म हो, ज्यादा ना हो, थोड़ा नॉर्मल से हो, कयामत तक जाएगा, कयामत तक जाएगा। नहीं, इतना ना हो कि आपस में खींचातानी हो, डंडे चले, लठियां चले, इतना हो कि बस देखिए बातचीत तो हो कम से कम, भले खींचातानी होती रहो। मेरी बात सुनिए, हम लोग के एक ही ऐलान है इस दौर का। अब ये बताओ आप, मैं एक बार कोटा में था भी, ये इदरीस रामपुर के हैं, ये स्वार के रहने वाले हैं, सुलाकुल्ली हैं। अब वो चाई मावा सेंटर देवबंदी से चंदा भी लेते हैं। और जब मेरा प्रोग्राम हुआ तो इतना जल मरा कि यानी जो भी मेरे साथ में शरीक हुआ उसके ऊपर भी वो दबाव दे रहा है। अरे तू तो खुद देवबंदी के साथ चंदा लिया, शाही मावा सेंटर कोटा में गुमानपुरा से, खुद देवबंदी से मिल लेता है, सब कुछ चंदा लेता है, 12 में आके चंदा लेता है देवबंदियों से, सुलाकुल्लियों से, वो ऊपर से अदरी में आकर मुरीद बनता है। चलो कोई भी देवबंदी को चंदा दे तो उसके लिए क्या हुक्म है? अब अहमद पटेल जो देवबंदियों के लीडर थे, सदर थे ना कांग्रेस के, अहमद पटेल कांग्रेस के, वो मर गए तो कोटा में उनके लिए दुआए मगफिरत हो रही है। और ये कलीमी, अब्दुल मन्नान कलीमी, उनकी सपोर्ट से हज करने गए थे साहब, अहमद पटेल गुजरात वाले थे। मेरी बात सुनिए। और आपने बताई थी कलीमी को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। मैंने यहाँ घोसी में आए भी थे, एक मरतबा पिछले साल आए थे। अच्छा, तो अल्लामा साहब का नाम था, अल्लामा साहब आए नहीं? क्यों नहीं है? मुलाकात करने नहीं आए, स्टेज ही पर नहीं आए। अच्छा, इनकी वजह से, कलीमी की वजह से? बिल्कुल। और ये तो समझ गए होंगे कि इन्होंने खिलाफ शरअ काम कर रखे होंगे। अरे वो किया है तभी तो बहुत आदमी गुल खिलाए हैं, वो ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप वो हजरत आप इतनी कम उम्र में इतने राज कैसे जान गए आप? सबके राज कलीमी के तो मेरी उम्र क्या कहते हैं 18 साल है। इतनी उम्र में आप इतने सारे राज जानते हो? अब देखिए राज की बात नहीं है, देखिए इस सदी का हैरत वाली बात है कि आप इतनी 18 साल की उम्र में अभी से इतने राज जान रहे हो, तो फिर कलीमी के कितने राज आपके दिल में है? इसने मुफ्ती जैश मोहम्मद पर भी कुफ्र का फतवा लगाया है, नेपाल वालों पर। ये तो आप देखिए मुफ्ती जैश मोहम्मद सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र का फतवा लगाया। मुझे पता चला कि वो क्या बोले कि अगर जो इसका जनाजा पढ़ेगा वो काफिर हो जाएगा। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। किसका जनाजा पड़ेगा? उनके जैश मोहम्मद का? हाँ। ये किसने फतवा लगाया था? वही वो लगाए या उनके यार जो है उन्होंने लगाया, कलीमी साहब ने वो लगाए या मुझे पता नहीं, लेकिन उस दोनों में कौन लगाए, वो लगाए हैं या मेरी बात एक मिनट वो या उनका नाम क्या है यार, नेपाल का जो काजी है मुफ्ती उस्मान। नहीं उस्मान साहब तो ढीले पोले आदमी हो। तो नहीं ढीले यार, अब भी का वो बताओ ना, अब भी का मसला, अब भी ये पीछे साल का मसला क्या है? दो उस्मान है, एक तो कश्मीरी मस्जिद नेपाल में है, काठमांडू में, जो नेपाल का सबसे बड़ा काजी है, जो आलतू फालतू आदमी का काजी बना है मुफ्ती उस्मान। आप बताइए कि लड़का बोल रहा है कि मैं वहाबी हूँ, ठीक, लेकिन बोल रहा है कि मैं वहाबी का जाना क्या कहते हैं निकाह नहीं पढ़ाया हो बंदा। अब लड़का भाई इकरार कर रहा है कि मैं भाई वहाबी हूँ, लेकिन
काजी बोल रहा है कि नहीं नहीं वो वहाबी नहीं है, ये कोई बात हुई? अच्छा, ये उस्मान कह रहा है। तो उस्मान कह रहा है। हाँ, ये कह रहा था कि भाई ये लोग सुन्नी हैं, हमने मालूम कर लिया, अब ये सब बातें देवबंदी वैसी कहलाते हैं, मगर ऐसा अकीदा नहीं, ऐसा बताया था उसने। अकीदा नहीं, वो बोला ना मन तशब्बह कौमी होगा। हाँ, वो तो सुरकुल्ली आदमी है, वो नेपाल का, मैं तो जानता हूँ। वही बात बोल दिया ना, ये दोनों में मैं गया हूँ कश्मीरी मस्जिद में, वहाँ पर काफी मैं नमाजें पढ़ी है काठमांडू में, तो ये सुलकुल्लियों का गढ़ है, वो कश्मीरी मस्जिद सुलकुल्ली है ज्यादातर वहाँ। हाँ, काफी देवबंदी सब मत ज्यादा। मैं तो गया हूँ ना, मेरी तकरीरें हुई काठमांडू में, बगदादी मस्जिद में मेरी तकरीर हुई, जहाँ अली मियां से एक फारिग का इमाम था, मौलाना ये अनवार बगदादी साहब जहाँ पढ़ाते हैं ना, वहाँ का फारिग इमाम था। तो अनवार अभी तो उन तो वो हलचल मचाए थे अभी कंजुल ईमान पे। कौन? वही अनवर बगदादी। क्या हलचल मचाए थे? अली मियां में, तभी तो बच्चे लोग वहाँ से भाग रहे थे। नहीं, क्या एतराज कर दिया था? हाँ, कंजुल ईमान पे एतराज किए थे। अरे हाँ, तो आपको पता नहीं क्या? अरे हजरत, आपको तो एक एक रात मालूम है, बताइए। आपको ही पता है, आप हमको भूल खिला रहे हैं, आपको पता है। अरे ये बात नहीं मालूम थी कि कंजुल ईमान देता, ये मालूम था कि स्ट्राइक हो गई थी, लड़कों ने स्ट्राइक कर दी थी, कुछ बात स्ट्राइक। आप बता स्ट्राइक क्या करेंगे? एक हसन मुस्तफा पढ़ते थे, वह इफ्ता कर रहे थे, मैंने उनको समझाया भी था कि ऐसी बात नहीं है, वो हमारे मिलने वालों के लड़के थे, कारी फाहिम साहब मुरादाबाद के, तो वो बहुत काबिल आलिम है लड़के, मौलाना मुस्तफा, हसन मुस्तफा, वो उठ के आ गए थे, वापस आ गए थे, लड़के स्ट्राइक कर दिए, मेरे समझाने के बावजूद नहीं माने थे वो। देखिए आप अब आपने बात बताई कि कंजुल ईमान पे एतराज किया था, ये बात नहीं मालूम थी मुझे, कंजुल ईमान के तर्जे में। एक बात सुनिए, इस दौर का एक ही ऐलान है, इस दौर का, कि जो मसला के आला से थोड़ा सा भी हटेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कट्टर होना चाहिए मियां सुन्नी, थोड़ा सा, वही तो। अब मसले के आला मतलब क्या आपको, मतलब जैसे इलियास काजी ने टीवी में आना शुरू कर दिया तो ये मसले के आला से हट गए? नहीं कैसे, वो देखिए, अब ये मसला क्या हालत है, टीवी में आना, मदनी चैनल दिखाना, ये तो अगर मियां भी खिलाफ थे टीवी के बहुत सख्त। तो देखिए बात, आप कट्टर सुन्नी बनो साहब, आप जैसे अभी कह रहे हो मसले के हालत से थोड़ा भी हटा, तो इलियास काजी तो काफी हट गए। काफी मतलब हटने क्या मतलब, नजरिया से हटने क्या? अरे पहले कहते थे टीवी को मारो शैतान को, खुद हजरी मियां ने भी यही बताया कि ठीक है आप दौर की बात करो, दौर देखो, दौर तो क्या अब मसला ये इलियास काजी हक पर रहते टीवी में आने से, तो आप हक पर नहीं मानते उनको? नहीं, हम तो नहीं मानते, क्योंकि मुहद्दिस कबीर का फतवा है, मुहद्दिस कबीर ने कहा है कि ये लोगों को बशारतें मिलती रहती हैं, इनके मानने वालों को अल्लाह के रसूल के दीदार होते रहते हैं हर कभी। तो आप ये कैसे, मेरी बात सुनिए, मैंने मेरी बात सुनिए ना, तो एक मेरी बात सुनिए, तो किसी को दीदार होता, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल है, लेकिन ये बात बतानी नहीं चाहिए, तो मैं ही मानता हूं, बताने नहीं चाहिए। कभी खुद कह रहे हैं कि यानी इतना आप लोगों में इतना आम तरीके से अल्लाह के रसूल के दीदार हो जाते हैं, यानी कोई मजाक की बात है साहब ये? मेरी बात सुनिए, हमने बुजुर्गों से सुना है कुछ वो दुरूस की कसरत ज्यादा करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं। मुहद्दिस से कभी क्यों कह रहे हैं फिर ऐसा कि आप लोगों के आदमी वो कपड़ा बेच रहा है, चिंदी बेच रहा है, और अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसको? ये देखिए मेरी बात सुनिए, कहा मुहद्दिस कभी ने साइकिल पे चल रहा है, चलते चलते, बताइए आप। मेरी मियां ने ये भी कहा है कि इन लोगों ने टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज सुनाई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना, टीवी से आवाज आई अल्लाह के रसूल। ये गलत बात, ये जो कुफ्र है ना, कुफ्र हो जाएगा। ये गलत बात, कुफ्र है साहब, गलत नहीं, कुफ्र है। आप कुफ्र का कुफ्र का फतवा क्यों नहीं लगाए? अरे मसलहत के तो नहीं लगाओ, लेकिन कुफ्र है। क्या मसलहत? अच्छी वही वाली बात हो जाएगी। अब बताओ, गैर नबी को नबी बताना, ये कहना कि टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना, ये तो सरासर झूठा। देखिए मेरी बात सुनिए, झूठा वाक़या बनाया गया ना सर। मेरी बात सुनिए ना, तो आप अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन, जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ठीक है, मैंने पढ़ा ये मिस्का शरीफ की हदीस, मैंने पढ़ी। कबीर ने भी यही हदीस बताकर ये के बारे में बताया है। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात, हुजूर मुहद्दिस कबीर साहब या कोई भी, अब वीडियो ऑडियो है यूट्यूब पे, सुन्नत आप पढ़ लें, उसमें सफा 27 से लिखा है कि हल्फिया बयान इस्लाम भाई का, जो भी इसके इज्तिमा में गए थे लांडी के अंदर, सबकी बख्शिश हो गई। एक आदमी उठ के आया, जब वो सोया तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे नादान, जितने भी उसके इज्तिमा में गए थे सबकी बख्शिश हो गई, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सबकी। अगर तू उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। उसमें काफी बात गलती है, किसमें? फैजान सुन्नत में। तो इसने तौबा कब की साहब? गलती से खाली निकाल दिया, कुछ नई एडिशन से निकाला, न कलमा पढ़ा, न आज तक रुजू किया, न तौबा किया।
तो मेरी बात सुनिए, वो इमरान आके नाटक कर लेता थोड़ा बहुत, उसकी बीवी बहुत मीठी है इमरान की, उसकी बेटी बहुत मीठी है, उसकी बहन बहुत मीठी है। अरे मीठी वो अपनी जगह कुछ नहीं, तो आपने देखिए आपने कुफर का मामला समझा होगा, कुफर कितना बड़ा है पता है ना? नहीं तो मुफ्ती समर की बीवी कितनी मीठी है, उसकी बहन। अरे तो वही वाली बात आ जाएगी, आप बोल दिए मुफ्ती समर कर रहे हो। नहीं, ये लोगों ने अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको भी तो मजा है सुनने में कि मुफ्ती समर की अम्मा कितनी मीठी है, नानी कितनी मीठी है, मुफ्ती समर की इलियास की अम्मा कितनी मीठी है। अरे देखो फिर आप जहालत बन के उतर रहे हो। नहीं, अब बताओ, जो अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहते थे, तो मीठे रसूल बोलते थे, क्या हो गया? अरे आप मुहद्दिस से कबीर से पूछिए, आप तो उनके शागिर्द हैं, अब आप पूछो फिर मुझे बताना कि हज़रत ने क्या कहा। वही वाली बात हुई कि मैं इतना छोटा आदमी उनके पास कैसे जाके ये बात नहीं पूछ सकता हूँ। अरे हज़रत से इतना तो मालूम कर लो कि हज़रत कोई अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहे तो क्या हुक्म है। हज़रत ने ये कहा है, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब, या रसूल जब मैं आपका नाम लेता हूँ, नाम मुबारक, तो मेरे मुंह में शहद नायाब घुल जाता है। चलिए ठीक है रसूल को मीठा नहीं कहा आज तक किसी ने। आपने देखिए इलियास काजी ने सलाम का मजाक बनाया, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, वो सलाम पूरी दुनिया में आज किसी भी मस्जिद में नहीं पढ़ा गया जुमे के अंदर। इनके हल्के में तो पढ़ लिया गया हुआ। क्या सलाम कि आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना। मतलब मैं समझा ना आप क्या बोलना चाह रहे हो। वो इलियास काजी ने सलाम का मजाक बनाया, सलाम लिखा था इसमें। मैं आपको शेर सुना देता हूँ, देखो ये किताब मैंने रख ली, एक मिनट। इसने लिखा, वो मैं सलाम आपको पढ़ गई तो बताता हूँ, फिर आप बताना कि ये सलाम है कि सलाम का मजाक बनाया इसने। ये आ गया सलाम, देखिए हज़रत, ये देखो मैं अभी बता रहा हूँ हज़रत साहब। ये लिखा है, कुएं महबूब की बकरियों को, मुर्गियों को, ककड़ियों को, लकड़ियों को, बल्कि तिनके वहां के उठाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। फिर लिखा, संगरेजों को और पत्थरों, संगरेजों को, छुरियों को, और ऊंट घोड़ों और खरों खच्चरों को, और परिंदों पे नजरें जमाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। और मैं पढ़ देता हूँ दो चार इसी तरह के जो शेर हैं। तू दरख्तों को और झाड़ियों को, उनकी गली की सब गाड़ियों को हाथ अपना अदब से लगाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। बोतलों को, बल्कि ढक्कनों को, दाल गंदुम को, चनों को चूमकर आंख से भी लगाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। फिर लिखता है, बैंगनों को, भिंडियों को, तुरइयों को, गोभियों को, गाजरों को, मूलियों को आंख से लोकियों को लगाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। फिर लिखता है, कमबख्त कि तू कनादीर को, कुमकुमों को, और तार स्विच को, और कूलरों को ठंडा पानी किसी को पिलाकर तू सलाम मेरा रो रो कहना। फिर लिखता है, चींटियों को, खूंटियों को, टूटियों को, हर तरह की जड़ी बूटियों को। किताब नाम बताओ। किताब का नाम है वसाइल बख्शिश, इलियास ने लिखा है। वसाइल बख्शिश, सफा नंबर बता दो। सफा नंबर है, ये लास्ट में आप देख लेना, सफा नंबर 598। वसाइल बख्शिश दूध नहीं है, एक ही किताब है ना। ये छोटे में आई है, दो साइज में हो सकती है, मेरे पास छोटे साइज में है। वसाइल बख्शिश सफा 598। ठीक है। एक ही जिल्द है ना कि दो एक ही जिल्द इकट्ठी है। ठीक है, लास्ट में वो है। बताओ ये सलाम का कैसा मजाक बनाया आपने। देखिए मेरी बात सुनिए। अच्छा ये लो, अच्छा आखिरी शेर सुना। काश होता मैं सख्त सैयदों का, बन के दरबान पहरा भी देता, रब ने भेजा है इंसान बनाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। ये अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह के रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया है, कह रहा है कि काश में कुत्ता होता तो सैयदों की खिदमत करता। क्या ये इंसान बन के सैयदों की खिदमत नहीं कर सकता? काश, अजीब वही वाली बात हो जाएगी। काश होता मैं सख्त सैयदों का, बन के दरबान पहरा भी देता, रब ने भेजा है इंसान बनाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। मेरी बात सुनिए, ये काश बोला है। मेरी बात सुनिए। और वो कैसे है, हुजूर आलत का शेर कैसे है? वो तो है, काश महशर में जब उनकी आमद नहीं, काश नहीं, एक नहीं, क्या कहते हैं वो, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे एक नात शरीफ लिखे ना हुजूर आलत, तो लास्ट में जब दीदार नहीं तो एक नात, कोई क्या पूछे तेरी बात है। हाँ, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो वो एक अलग शेर है। ये मेरी बात सुनो। आप कोई बोल मेरी बात सुनिए ना, के सामने क्या है ना, मैं आलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आला हज़रत की बात नहीं कर रहा हूँ। आला हज़रत क्या बताऊँ मैं, आलत की शान बहुत बड़ी है। आला हज़रत से बड़ा आशिक रसूल बताना चाह रहा था सलाम लिख के कि मैं आला हज़रत से बड़ा आशिक रसूल हूँ। इसीलिए आप एक बात और देखें, ये देखें, वल्लाहु आलम मिलेगा। अब ये अपने मुफ्तियों से वल्लाहु व रसूलु आलम लिखवा रहा। मैंने मुहद्दिस कबीर से पूछा
तो हजरत जो यही कहा कि पहले से ही वल्लाहु आलम लिखा चला रहा फतवे के हर जवाब में। आला हजरत से बड़ा कोई आशिक रसूल है कि आला ने हदीस नहीं पढ़ी थी, साहबा किराम कहते थे वल्लाहु रसूल आलम। आप मेरी बात सुनिए, आला ने वल्लाहु रसूल आलम हर फतवे में तो नहीं लिखा, वल्लाहु आलम लिखा। अब रियाज वल्लाहु रसूल आलम लिखवा रहा है, ये नई स्टाइल पैदा कर रहा है। मेरी बात सुनिए ना, मैं भी वो लफ्ज बोलता हूँ अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह आलम व रसूल आलम, मैं भी बोलता हूँ ये बात। लेकिन कभी ने मना किया है, कहा कि यार अजीब बात बोलते हो आप, हर चीज में यही जा रहा। तो हुजूर मुहद्दिस कबीर साहब बोले हैं क्या कहते हैं नजदीक को मुसलमान मानने के लिए? पूछ लेना, मैंने पूछा। मेरी बात सुनो ना, तो अब नजदीक को मुसलमान मानने के लिए बोले हैं जामे अदर मिस्र में सब वही तो है, देवबंदी नजदी तो पढ़ते हैं, अहले हदीस पढ़ते हैं। सगीर जोखनपुरी के लड़के को तौबा करना चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए। जो सगीर जोखनपुरी का लड़का पढ़ रहा है ना कि मैं सुलह कुलियों के साथ बैठ के आया, मैं खा के आया, गोश्त खा के आया, वहाँ नमाजें पढ़ी उसने, 4 साल नमाजें पढ़ता होगा वहाँ सुलह कुलियों के पीछे। वो सब सुलह कुली है, दाढ़ियाँ कटाते हैं, पेंट बुशर्ट पहनते हैं। सदरुल शरिया तो खुद अपने बेटे से नाराज थे। वो अब्दुल मुस्तफा जहरी साहब जो पढ़ के आए थे ना, कहा कि अगर ये सही कंडीशन में आए तो लाना, अगर सही कंडीशन में नहीं आया शरीयत के लिबास। हाँ, जो जन्नती जेवर लिखे हैं। हाँ, वो हजरत ने कहा था कि अगर ये इस्लामी लिबास में आए तो उसका इस्तेमाल करना, नहीं तो वहीं से लौटा देना। तो हजरत का रोजा मेरे सामने ही है। अब्दुल वो जानते थे कि वहाँ सब पेंट बुशर्ट पहनने वाले, दाढ़ियाँ कटाने वाले लोग हैं जामिया मिस्र में। मैं समझता इस दौर में जामिया जाना वहाँ कुछ ना कुछ उसकी नजरिया बदलती है भाई, है ना, बिल्कुल बदलती है। अगर आप रोशन जमीर आप समझ सकते हैं मसला मैं क्या दिमाग खराब है, बार आप रोशन जमीर क्या रोशन जमीर हो चुके हैं वहाँ पर सब। अब एक ही वर्ड को क्या बार सगीर जोखनपुरी को वहाँ के मौलाना ने मना कर दिया, शरीफ साहब ने, कि यह मुनाजरा नहीं होगा, ये फितनाबाजी नहीं होगी यहाँ पर। वो लोग हुसामुल हरमैन को नहीं मानते, वो लोग तो सबको मुसलमान मानते हैं। जैसे सैयद सराबा वालों का अकीदा है ना, वही जाने अजहर वालों का अकीदा है। हजरत आप मानते हैं किसको? हुसामुल हरमैन को मानते हैं आप? अरे मैं पढ़ूंगा उसको दोबारा से, मैं एक बार और बहुत पहले देखी थी, वो मुझे आप सेंड कर देना, मैं जरा पढ़ूंगा एक बार वो, फिर के है क्या सबका। तो ठीक, आपने पढ़ लिया उनका फैसला मिला। 18 साल की उम्र में इतनी सब बातें जानते हो, कमाल की बात है साहब। तो फिर कमाल बात बाद में करिए, कमाल जमाल वो पहले मैं वो पूछ रहा हूँ। तो आप मानते हैं तो फिर ये बताइए आप कि जैसे कोई सैयद सराबा गया और जानते हुए कई बार गया वहाँ पर, फिर नमाजें भी पढ़ी, खाया भी, तो उस पर हुक्म कुफ्र, वो तजदीद ईमान तो करना पड़ेगा उसे। अब गलत मतलब कि उनकी नजरिया में जो सुना हूँ, मैंने उनको पढ़ा नहीं है, हमारे बुजुर्ग उनसे बचते हैं, हमारे बुजुर्गों ने उनको जाने से मना किया है। तो मुसलमान तो मानेंगे ना सैयद सराबा वालों को? मुसलमान तो मानेंगे। तो देखिए, मुसलमान सैयद सराबा को हम तो यहाँ तक सुने कि सैयद सराबा वाले किसी की तकसीर नहीं करता, जिन पे कुफ्र का फतवा लगा है, जो जहन्नम का हावी लोग है। तो फिर क्या माने उनको, मुसलमान माने या न माने? देखिए, ये मैं सुना भाई, जो काफिर उसको काफिर न मारे वो खुद काफिर है। तो अब ये मुफ्ती रहमान तो 7 दिन रह के आए, इफ्ता की ट्रेनिंग देने गए थे। मैंने बोल दिया मुफ्ती रहमान सही ना, मैं बोल दिया ना आपको। अरे ये क्या चक्कर है साहब, ये क्या इन्हें खलीफा मुफ्ती हिंद नहीं है? आप आप फिर वहीं पे चल रहे हो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इन्होंने जो है वो नसीम मिल्लत पर से कुफ्र का फतवा उठवा दिया था। आपने तफ्तीश किया? हाँ वो तो सही, हो तो यूट्यूब में आया हुआ है सोशल मीडिया पे। तो इनको चाहिए कि ये देवबंद भी जाए, नजवा भी जाए, सबके ऊपर से कुफ्र के फतवे उठवा दे, फैसला ले दे। हाँ वही तो मैं बोला ना, है ना। ये नसीमी सरकार का जो मामला आया था, वो हुजूर मुफ्ती आसिफीन, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मरसूल कादरी, मुफ्ती शरीफुल्लाह शारे बुखारी, यहाँ तक आ गया, हाफिज मिल्लत हुजूर ताहिर शैया, ये जाकर उनको कैसे मोमिन साबित कर दिए? ये मुफ्ती रहमान है ना, और साथ में कलीमी साहब भी बैठे थे साथ देने के लिए। अरे भाई वो दोनों वो पार्टनरशिप है। हाँ ये हजरत सही कह रहा है, इन दोनों का भरोसा नहीं है कि किधर भी जा सकते हैं, देवबंदी बरेली दोनों में जा सकते हैं लोग। नहीं तो आपने किस एतबार से मतलब क्या किया, क्या आला हज़रत ने उनको काफिर बोला है? किनको बोले हैं कि नहीं बोले? नजदियों को। वो तो ये है कि किसी के अकीदे अगर कुफ्रिया हो तो काफिर माना जाएगा, पहले छानबीन की जाएगी। आलत ने ठीक है, तो मेरी बात सुनिए, मुतअय्यना मुबय्यना जो किसी की इबारत अगर कुफ्रिया है वो फिर उसकी तावील नहीं कर सकता। अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी ने यही लिखा है कि सरी कुफ्र में तावील की गुंजाइश नहीं। तो मुफ्ती आजम हिंद ने लिखा है कि अगर किसी की बात के 1000 मतलब निकलते हो तो ज़ईफ से ज़ईफ, नहीफ से नहीफ तावील भी निकल सकती है, तो उसे कुफ्र से बचाया जाएगा। ये सफा 594 में लिखा, जिल्द 4 में आपने। ठीक मेरी बात सुनिए। लेकिन अगर तावील नहीं निकल सकती तो फिर काफिर कहा जाएगा। और कायल अगर ये कहता है मेरी ये मुराद नहीं है कुफ्र की, तब भी उसको काफिर नहीं कहा। वही वाली बात हो, कायल कर अशरफ अली थानवी क्या कायल? अरे बहुत से, जैसे कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफ्र का फतवा लगाया। अब वो कहते हैं, बात सुनो ना, कभी ने कुफ्र का फतवा लगाया ना,
मेरी बात सुनिए ना। जैसे कबीर की नजर में वो काफिर हैं, लेकिन और भी जो उनके उलमा हैं, मुफ्ती आजम के खलीफा है, शागिर्द हैं, वो उन्हें मुसलमान मानते हैं। तो क्या कोई जरूरी है कि मुफ्ती आजम के जो खलीफा हो, जैसे शागिर्द कबीर हो? के शागिर्द मुसलमान मान लेंगे, बहुत सी बड़ी तादाद में हज़रत मियां के खलीफा और शागिर्द अरे मुसलमान मान मेरी लेंगे। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये अमजदिया का कोई और एक ये फारूक नागपुरी ये खुद मुसलमान मानता है, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को। फारूक नागपुरी है ना जाहिल, वो वकील मरगट मसान लैपटॉप लेके फिरता रहता है। आपने उनको जाहिल कैसे वो बोल दिया? मुहद्दिस कबीर को नहीं मानता, वो फारूक नागपुरी। क्यों, कौन बोले कि नहीं मानते हैं? वो कह रहा था कि ये 30 साल उम्र में बड़े हैं इनसे, अजहरी मियां से, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद अरे नागपुरी। यार ये आप कुछ भी बोल रहे हो या मतलब कि नहीं, मैं उसने ये कहा था कि मुफ्ती आजम हिंद मुजद्दिद नहीं थे, ये बात मानता था फारूक नागपुरी। मुफ्ती आजम मुजद्दिद नहीं थे मुफ्ती आजम हिंद। देखिए ये तो मोहम्मद अहमद मिसबाही ने भी लिखा है, जहानी मुफ्ती आजम हिंद आप पढ़ना, उसमें उन्होंने भी मेरी लिखा बात है। सुनिए, जहानी मुफ्ती आजम हिंद उन्होंने लिखी है, कहा कि मुफ्ती आजम हिंद मुजद्दिद नहीं थे, लेकिन परहेजगार थे, मुफ्ती थे। तो बात सुनिए ना, हमारे उलमा क्या बोले, अगर इस दौर में कोई मुजद्दिद होते तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद होते। हाँ, लेकिन वो माना नहीं, मोहम्मद अहमद मिसबाही जो अशरफिया में है ना, उन्होंने नहीं माना। और खैरुल्लाह किया तो उनके खिलाफ मुफ्ती शाहिद मियां रामपुरी ने किताब लिखी थी, इरफान मुफ्ती आजम हिंद, उसमें रद्द किया था कि तुम कमाल के रद्दी हो, मुजद्दिद नहीं मान रहे मुफ्ती आजम हिंद को। देखिए आप क्या फैजान नजर जो उनके लड़के हैं वो जामिया अज़हर में सुलह कुल्लियों के साथ पढ़ के आए। शायान नजर जो अनंतनाग में कश्मीर में वो भी सुलह कुल्लियों के साथ पढ़ के आए। क्या मानते हैं? नहीं, न कलमा पढ़ रहा है न तौबा कर रहा है, ये छुपा क्यों रहा है अपने आप को? बताएं कि किसके पीछे नमाज पढ़ी जामिया अज़हर मिस्र में, किस किस से मुसाफा किया, कभी गोश्त खाया कि नहीं, ये शाकाहारी खाया या मांसाहारी खाया 4 साल इन्होंने। आपने क्या मानते हैं? किसको? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को। मुफ्ती आजम हिंद तो परहेजगार आलिम थे। यार देखो उनका जानशीन सही कोई था ना, तो सदरुल उलमा थे हजरत मौलाना तहसीन रजा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो सही जानशीन थे। या अमीन शरीयत थे वो वहाँ पर कांकेर में जो थे, वहाँ पर MP में। तो ये काबिल लोग थे जिनको मैंने देखा है। की बात कर रहे हो आप ना? हेलो, हाँ, तहसीन मिल्लत जिन्हें कहा जाता है ना? अरे हाँ, आप समझ गए, वही है सदरुल उलमा, वो बहुत परहेजगार आलिम थे। मेरी बात सुनिए, सदरुल उलमा, आपने ये बात बोली ठीक है। मेरा आपको एक नजरिया चाहिए। जब हुजूर आला ने ये चारों आदमी पर ये, और वो तो लगाते रहते हैं फतवे, तो ऐसे ही मंसूर अल्लाह पर भी कुफ्र का फतवा लगाया था, लेकिन आला भी हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उनको सब वली मानते, लेकिन कुफ्र का फतवा लगाया था उस जमाने के आलिमों ने। अब देखो, यजीद को आलत ने काफिर नहीं कहा, इमाम अहमद इब्न हंबल ने काफिर माना है, एक इमाम ने नहीं कहा, हमारे इमाम ने बीच में लटका दिया है। हमारे इमाम ने सुकूत इख्तियार किया। तो फिर देखो ये इख्तिलाफात होते हैं। जैसे हजरत अबू तालिब को हजरत शाहजहानी वाला मक्की मुसलमान मानते हैं, आला हजरत मुसलमान नहीं मानते हैं। अब कैसे देखो ये इख्तिलाफात है, किसी की नजर में कोई काफिर, किसी की नजर में मुसलमान। मेरी बात सुनो, क्या आप, चलो ये इफ्तिखार अमजदी है, मऊ रानीपुर में आपके अमजदिया से पढ़ा, उसकी दोनों बहनें देवबंदी के घर में, ये मऊ रानीपुर में काजी बना, दोनों बहनें देवबंदी के घर में उसकी, ये नजीबाबाद में। अब क्या कहोगे, क्या उसकी बहनों को आप क्या कहोगे साहब? देवबंदी नाम बताओ। इफ्तिखार अमजदी वहीं से पढ़ा है, जामिया अमजदिया से। चलिए ठीक है, आप तहकीक कर लेना। और नजीबाबाद का रहने वाला बीनूर का। मेरी बात सुनिए, आपने मतलब कुछ भी क्या यजीद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वो इबादत लिखा गली से बात, मैं ये मेरी ज़मीन गवाह नहीं करने कि मैं वो लफ्ज़ बोलूं, क्या वो जो गली के फिर बाद में बात कर लेंगे। 48 मिनट हो गए, इंशाल्लाह फिर गलवा के फिर कल आप वही वाली बात लास्ट में आते हो, भागने लगते हो आप। नहीं, अब भागने पड़ेगा कि रात ज्यादा हो गई इंशाल्लाह फिर, क्योंकि आप काबिल आलिम हो और आप मुहक्किक बन सकते हो। आप क्या बोल रहे थे? आपने ऐसी बातें बता दी हैं। अब्दुल मन्नान कलीमी का राज जानते हो आप? ये देवबंदियों से सबसे मिल लेता है। तो आपने मतलब ये अब्दुल मन्नान कलीमी देवबंदी के मदद से हज करने गया था, अहमद पटेल गुजरात वाले के। आपकी नजरिया मुझे सही नहीं लगती है। उधर जो है पाकबड़ा में तो फतवा दे रहा है कुफर का देवबंदी की नमाज पढ़ने पे, वो खुद जा रहे हैं देवबंदी की मदद से हज करने। अहमद पटेल जो कांग्रेस के लीडर थे ना, बहुत बड़े, आपने देवबंदी गुरु घंटाल को काफिर क्यों नहीं कहते? शादी की वहाँ पर बिहार में शादी जो की देवबंद वालों में रिश्ता किया इन्होंने। तो मेरे बात सुनो, आपने देवबंदी को गुरु घंटाल को काफिर क्यों नहीं बोले? बताओ, कलीमी के बारे में आपने खुद कहा कि मैं जानता हूँ, उनको कहा था। तो कलीमी की बात सुनो, आपने उनको गुरु घंटाल को काफिर क्यों नहीं बोला जब हुजूर आला ने बोले अपना? अपन बाद में बात करेंगे, कलमल बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? थोड़ा तसल्ली से बोला पड़ता है, ठीक है ना? कलमल, ठीक।